السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انمول جاتے ہیں پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اکثر عامر حسنی آئی فوکس ٹی وی سے، اور ہمارے ساتھ آج پھر مکرم صفدر علی وڈائش صاحب ہیں، اور آج ان کی کچھ انمول یادیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور آج ہمارا موضوع ہے مولوی سلطان انور صاحب، جن کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا، تو ان کی یادیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ وہ صفدر وڈائش صاحب سرگودا میں رہے ہیں اور بالکل قریب ہے، اور ان سے بہت زیادہ وقت ان کی ملاقات رہی، باتیں، تو بہت ساری چیزیں ان سے معلوم ہوگی۔ السلام علیکم صفدر وڈائش صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، آج بتائیے کچھ مولوی صاحب کے حوالے سے۔ جی، میں مولوی صاحب کے متعلق بات کرنے سے پہلے تبرکن یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ میرا ہو سکتا ہے والدہ کے ساتھ یا والدین کے ساتھ بہت بچپن سے جانا آنا جلسوں پر رہا ہو، جلسہ سرانہ پر، مگر مجھے جو ہوش ہے میں وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ 1972 72 کہہ سکتے ہیں، 71 میں تو شاید جلسہ نہ ہوا ہو، دنوں میں جنگ تھی تو شاید اس وجہ سے نہ لگا ہو۔ 72 میں مجھے جہاں تک یاد ہے، تو میں جب پہلی دفعہ جلسہ سالانہ پر گیا تو میرے ساتھ میرے چچا چودھری محمد صاحب جو بعد میں ان کے ساتھ میں تھا اور میں جلسہ پر گیا۔ جب اچھا میں جی۔ جلسہ پر بیٹھا ہوا تھا نا، تو میں جب سٹیج کو دیکھتا تو سٹیج پر بڑے بڑے علماء نظر آتے، جن میں نمایاں طور پر حضرت مولانا عبد المالک خان صاحب اور جی ان کی مہندی رنگ جو پگ ہے وہ نظر آتی، اور بڑا ان کی زبان اتنی شیریں تھی کہ جلسے پر جب نعرے لگاتے یا بات کرتے تو بہت مزہ آیا کرتا تھا۔ اور پھر حضرت مولانا نذیر احمد صاحب لائل پوری، حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب، اور حضرت مولانا ابو العطا جلندری صاحب، اس طرح کے بزرگ اس وقت جلسے پر نظر آتے تھے۔ تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش یہ بزرگ میرے گھر میں آئے، اچھا۔ یہ بزرگ میرے گھر میں آئے۔ ہم، اور مجھے جو وہاں ایک غیر معمولی میں سمجھتا ہوں میری زندگی کو جس واقعے نے بدلا، وہ یہ تھی کہ جب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث آنے والے تھے اور زور زور سے اڈر پار باج رہے تھے اور وہ خدام کی کے ساتھ آ رہے تھے حضور، تو میرے دل میں اس قدر تڑپ تھی کہ میں جو عالم بڑی پاک والا اسٹیج پر آتا تو میں چچا کو کہتا کہ یہ حضور ہیں، تو چچا جی کہتے نہیں، جب حضور آئیں گے تو 14ویں کا چاند چڑھ جائے گا۔ تو اس قدر دل میں اتنی تڑپ تھی کہ میں کیا بیان کروں۔ واقعتاً جب حضرت خلیفۃ المسیح اسٹیج پر آئے تو وہ ایسے اسٹیج پر آتے تھے، بعد میں بڑا بڑے جلسے حضور کے اٹینڈ کیے تو ان کے دونوں ہاتھ ایسے ہوتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جب اس چہرے کو دیکھا تو میں یقین کریں کہ میرے چچا نے کندھوں پر مجھے بٹھایا ہوا تھا، اور غالباً میں 5ویں کلاس میں یا اس کے ارد گرد پڑھتا ہوں گا، تو کندھوں پر بٹھایا اور مجھے ایسے لگا کہ کرنٹ میرے سر میں داخل ہوا ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ وہ میرے پورے جسم میں سرایت کر گئے۔ یہ واقعی خلیفہ کے ساتھ عشق اور محبت کا ہی میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ کرنٹ آج تک پھر بعد میں اس طرح کا مجھے اس طرح کی صورتحال کبھی پیدا نہیں، وہ ایسا کرنٹ تھا۔ تو مولانا خان صاحب کے نعرے اور یہ ساری چیزیں نظر آتی تھی۔ تو جب ان کی وفات ہو گئی، حضرت مولانا عبد المالک خان صاحب کی وفات ہوئی، تو جی دل میں ایک ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کا اتنا زبردست عالم اور اس قدر ان کی آواز میں شیریں تھی کہ میں کیا بیان کروں۔ ان کی ساتھ بھی کچھ ایک یادیں ہیں، لیکن وہ آج موضوع نہیں ہے۔ جی جی تو میں حضرت مولانا
सुल्तान महमूद साहब अनवर के बारे में आज बात करता हूँ। उनकी वफात हुई है, मुझे बहुत दुख हुआ है। कल उनके एक दामाद कुरैशी साहब, चंद दिन पहले मैं उनसे जिक्र कर रहा था, जब ताज़ियत का पैगाम दिया तो मैंने उन्हें यह दिया कि मैं भी अपने आप को उनके लवाकिन में समझता हूँ कि उनका इस तरह का प्यार और मोहब्बत का तल्लक हमारे साथ था। जी जी। वो मुझे जो पहली उनके साथ मेरी मुलाकात थी, मौलवी साहब को तो नहीं पता, लेकिन मैं बच्चा था, छोटी उम्र थी, तो वो मंडी बहाउद्दीन में शुगर मिल में डाल करते थे और वो दौरों पर आते थे। जी जी। तो मुराला आते, मुराले वाले कुड़ी पर उनको यहाँ छोड़ के जाते हमारे गांव में। और मेरे वालिद साहब चौधरी मोहम्मद शरीफ साहब जो थे, वो फिर मुख्तलिफ जमातों के कोड़ी पर दौरे भी कराते और फिर वापस मुरारा छोड़ के आते। इस तरह का ये जो सिलसिला था वो जारी। और इसमें मैं ये बात अर्ज करनी चाहता हूँ कि मेरी बचपन से मैंने जब होश संभाला है कि मेरे चचा दादा चौधरी मिर्जा खान साहब जो थे वो सदर जमात हुआ करते थे और मेरे वालिद साहब सेक्रेटरी माल होते थे। तो मेरी ये ड्यूटी होती थी कि मैं जो मरकज से उलमा या वक्फ आरजी पर जो लोग आते थे उनकी खिदमत पर मामूर होता था, उनकी मेहमान नवाजी करता था, उनके साथ इधर उधर कहीं भी जाना हो तो मैं जाया करता था, छोटा होता था। तो ये हमें जो इस तरह का जो जमात के साथ अटैचमेंट का सिलसिला है, मैं समझता हूँ परदादा हजरत चौधरी बूढ़ा खां से लेकर फिर दादा चौधरी चौधरी मिर्जा खान साहब और फिर वालिद साहब से ये मेरे साथ आया। तो बात मौलवी साहब की हो रही है। तो मौलवी साहब एक दफा आए हुए थे तो एक मुनाजरा वहां जवाब में मुनाजरा इस तरह हुआ कि एक वादी मौलवी था, बड़ा तगड़ा मौलवी था, वो था और मौलवी साहब इस वक्त ने उनकी जवानी देखी हुई है, उनको नौजवानी की हालत में देखा है। जी तो वो मौलवी मुझे और तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस मौजू पर बात हो रही है या क्या हो रहा है, पूरी बातें नहीं आती थी। तो वो हमारा जो गुलाम रसूल, मैंने उसका जिक्र बार बार चल रहा है, वो उसको मरासी था और दादा उसको हम कहते थे। वो इन सब चीजों का ऑर्गेनाइजर हुआ करता था, सारे बैठाने का, चाय पानी पेश करने का, ये वो इस तरह की चीजें करने का, और उसको दिलचस्पी की बड़ी होती थी। तो वो भी और मैं भी ये खिदमात सर अंजाम दे रहे होते थे। तो मैंने देखा कि मौलवी एक किताब पकड़े हुए है, उस पर से पढ़ पढ़ के ना ऐसे बातें कर रहा है। तो मौलवी साहब ने ऐसे लंबा हाथ करके उन्हें कहा, मौलवी साहब ये दिखाएं ये क्या है। उस किताब को ऐसे रखा, कहा अब बात करें। तो उस मलिक में कुछ नहीं था, वो खामोश हो गया। मौलवी साहब ने कहा कि बात करनी है तो फिर ऐसे करें ना, कुरान पढ़ा है, ये किताबें इनको छोड़े पास, उसके पास कोई और सारी दुनिया जो बैठी हुई थी, 15 20 25 बंदे बैठे हुए, सब हंस पड़े, इस मौलवी के पल्ले तो कुछ नहीं है। हाँ। तो वो इस तरह का एक वाकया मुझे बचपन का यही याद है। फिर उनके साथ मेरा तल्लक असल में पैदा हुआ सरगोदा में ज्यादा। मैंने सरगोदा में हजरत मिर्जा अब्दुल हक साहब के साथ भरपूर मकबूल भरपूर खिदमत दीन की तौफीक मिली है जी जी। कि मैं हजरत मिर्जा अब्दुल हक साहब की आमला में था और मैं कायद खुदामुल अम्बिया जिला सरगोदा, और फिर मैं सेक्रेटरी दावत जिला सरगोदा के तौर पर काम करता करता था। फिर एक स्टेज पर मैं सेक्रेटरी रिश्ता नाता भी हुआ, तो उस वक्त था नाजर नाजर रिश्ता नाता थे नजर मौलवी रिश्ता साहब। नाता भी रहे हैं, तो बिल्कुल। मौलवी साहब का बराह रास्त तो हमारे जिले में इस तरह का दखल नहीं था, क्योंकि हमारा इजला मकामी इजला में आता था जी। सरगोदा। हाँ जी। तो आप मरकजी नाजर थे। तो वैसे दौरों पर कभी कभी उनको बुलाया जाता, वो तशरीफ लाते और मैं भी जाता, तो मेरा तारफ पूरी तरह हो गया था। मुझे वो कहा करते थे कि आप तो मेरे दोस्त के बेटे हैं और मेरे साथ बहुत प्यार, मेरा वो प्यार और
मोहब्बत का तल्लुक दोस्ती में भी और वालिदैन की जगह पर भी उनके साथ बड़ा मजबूत रहा। तो जब मैं आता मैंने कभी नहीं देखा। आज मैं कई दफ़ा इन अपने लोगों को कहता रहता हूँ कि हज़रत मुस्लिम मौद ने एक दफ़ा फरमाया था कि जब कोई बंदा महल से आए, बेशक मामूली कोई बंदा हो, तो बेशक आप कितने बड़े नाज़िर हैं, आप उठकर उनसे मिलें। तो मौलवी साहब की मैंने ये बात देखी कि जब भी मैं जाता तो ऐसे लगता कि मैं अपने वालिद के पास आ गई, उठ के मुझे मिला करते थे और बड़े प्यार के साथ बैठाया करते थे, बातें करते थे तबलीग की और मुख्तलिफ इस तरह की बातें किया करते थे। तो मैं अपने ज़ाती 3-4 तल्लुक के हवाले बयान करके तो फिर मैं उनके लिए दुआ ही करूँगा कि अल्लाह ताला उन्हें करवट-करवट जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके जो लवाहिकीन हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं, अल्लाह ताला सबको सब्र की तौफ़ीक दे और मैंने उन जैसा वो इस तरह के आदमी थे कि खुदा के खलीफा के साथ प्यार और मोहब्बत और वफ़ा का तल्लुक कूट-कूट कर बराबर था। मैंने नहीं देखा। बेशक, बेशक। तो एक दफ़ा मैं उनका वाक़या ऐसे बयान करता हूँ, मेरा बल्कि जो निकाय सानी था, वो भी उन्होंने पढ़ा था, हज़रत अनवर साहब ने। तो जब वो निकाह पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें उस मेरे प्रोग्राम में सिलसिला आलिया के बहुत बड़े-बड़े बुज़ुर्ग ख़ानदान मसीह मौद के लोग भी उसमें शामिल थे, सारे नाज़िर साहिबान भी थे, सारी तंज़ीमों के हेड भी उसमें शामिल थे। तो उन जो खुतबा निकाह उन्होंने पढ़ाया तो मैं चूँकि ये शादी इस अंदाज़ में कर रहा था, पहली बीवी को ब्रेन हेमरेज हो गया था और उससे औलाद भी नहीं थी, दूसरी शादी कर रहा था, तो उन्होंने इस इतना उम्दा खुतबा अता फ़रमाया कि वो खुतबा मेरे पास रिकॉर्ड है, पढ़ा हुआ है। तो उस खुतबे में उन्होंने जब मेरे मुतल्लिक़ बयान किया कि ये इस तरह ख़ादिम दीन है, तो मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता था कि मेरे मुतल्लिक़ इतने ज़बरदस्त फ़िक़रात हज़रत मौलाना के मुँह से निकले हैं। तो उम्दा खुतबा हज़रत मौलाना साहब ने इरशाद फ़रमाया कि ऐसे लगता था कि इस दौरान जितने बुज़ुर्ग बैठे हैं, जो दुआएँ उन्होंने की हैं, वो सारे की सारी अल्लाह ने मेरे हक़ में पूरी कर ली हैं। माशाअल्लाह। तो वो उन्होंने एक तो ये खुतबा इरशाद फ़रमाया, फिर ऐसा मौका आया, एक जो मैं वाक़या यहाँ कोट करूँगा, जी, जी। ऐसा आया कि उस शादी से अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से नवाज़ा। तो सरगोदा किसी प्रोग्राम में आए हुए थे और उस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़र तो मैं था और मैं उस दिन उस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सका था क्योंकि मेरी जो बीवी है वो डिलीवरी केस था, वो अस्पताल में थी और मैं उसमें शामिल ना आ सका और डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अहमद गोंदल साहब जो थे, उनको मैंने अपना क़ैम मुक़ाम मुकर्रर किया हुआ था, वो वहाँ थे। तो वो बात में मुझे बताते हैं मौलवी साहब ने कहा वो आज आपका नंबरदार किधर है? क्या मुझे इस तरह करके प्यार से कहा करते वो आज आपका नंबरदार किधर है? उन्होंने फिर बताया कि ये उनका बच्चा आज डिलीवरी मुतवक्को है वो अस्पताल में है। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। अच्छा। मुझे लम्हा-बलम्हा आगाह करें रखें। हुँ। चुनांचे ऐसा हुआ कि उस दिन रात को पौने 7 बजे 9 मई बरोज़ जुमा और यकम मुहर्रम भी था। वो बच्चा पैदा हुआ रात को पौने 7 बजे। अच्छा। तो सा पहले तो हज़रत मिर्ज़ा अब्दुल हक साहब आए थे, फौरी तौर पर उन्होंने आके अज़ान दी और बच्चे के कान में और अ, तोहफ़े तहफ़ दे के गए। लेकिन मौलवी साहब जब आए, तो मैं नर्स जो है ना, जो फ्रंट काउंटर पर थी, वो दौड़ती हुई आई। वो कहने लगी कि स्टेज पर वहाँ एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग आए हैं, वो आपको बुला रहे हैं। यानी उनकी शख्सियत का ऐसा असर, यानी वो गैर अहमदी थी, वो तो नहीं जानती थी ये कौन है। हाँ, बिल्कुल।
तो वो दौड़ के आई, मैं भी भागता हुआ गया तो क्या देखता हूँ कि हजरत मौलाना सुल्तान महमूद अनवर साहब खड़े हैं और एक 2 किलो का मिठाई का डब्बा पकड़ा हुआ है और साथ ड्राइवर भी है। तो हंस के मुझे कहते हैं, मैं सिर्फ निकाह नहीं पढ़ाता, मैं पीछा भी करता। फिर वो बच्चे को माशाल्लाह। प्यार और आके कोई पैसे भी दे के गए, और इस तरह एक तो वाकया उनका मैं ये कोट करता हूँ, कोट कर रहा हूँ। फिर मुझे आज तक वो ज़हन में बात आती है कि मुकर्रम महमूद अहमद बंगाली साहब का सदारत का दौर था, तो गवर्नमेंट ने इज्तिमा की इजाजत दी। हमारा इज्तिमा वहां हो रहा था मस्जिद अक्सा में, और मौजूदा हजूर उस वक्त मोतमिम बरून थे, यानी अच्छा। उनकी वो जवानी वो आज भी मुझे नजर आ रही है अपने प्यारे आका की। तो और मेरा गालिबन उसी इज्तिमा पर इनसे पहला तारफ था मौजूदा हजूर से। तो उसमें सैयद खालिद शाह साहब भी थे, कासम शाह साहब भी थे, और ये सारे साहबजादगान भी थे, और मदानी साहब का दौर था, और हाफिज मुजफ्फर साहब भी थे। तो यानी दरमियान में आके अचानक बंगाली साहब ने इज्तिमा का ऐलान कर दिया कि गवर्नमेंट ने इज्तिमा को रोक दिया है, इज्तिमा को बंद किया जाता है। तो ये अनाउंसमेंट हुई, खुदाम को पिपरे नारे जुड़े हुए, और मुझे याद है कि वहाँ जो हदायत ये हुई कि फौरी तौर पर लजना बैरक्स में चले जाए। अच्छा। तो वहाँ एक काम चले जाए, इज्तिमा को खत्म किया जाता है और सारे खुदाम वहां चले जाए। तो फाटक है वहां पर सैयद खालिद शाह साहब ने फट्टू पर एक मुख्तसर सा खिताब फरमाया था और दरी की थी कि खामोशी के साथ, सब्र के साथ, दुआओं के साथ आपने वहां पहुंचे, यानी खुदाम को बिफरने नहीं दिया, और वो वहां चले गए। जब वहां लजना बैरक के अंदरूनी हाथा में मुकर्रम मौलाना अब्दुल मालिक मौलाना सुल्तान महमूद अनवर साहब ने एक ऐसा उम्दा खिताब फरमाया, वो ऐसे लगता था कि खुदा की जो फतूहात हैं वो दौड़ती हुई आ रही हैं जमात की तरफ, और ऐसे लगता था आज आज नहीं आज या कल पूरी बदल जाना। इस अंदाज में उन्होंने खिताब किया। वो खिताब बाद में मैं सुन नहीं सका, मेरा कोशिश की कि वो कहीं से मिले और मैं वो सुनूं, पता नहीं वो रिकॉर्ड में है या नहीं है। वो इतना जबरदस्त उम्दा खिताब था, और उस वक्त से एक प्यार और इश्क, मोहब्बत और इश्क की एक लहर उनके लिए मेरे दिल में पैदा हो गई थी, और उनके साथ हमारा इस तरह का फिर तल्लक जारी रहा, क्योंकि मेरे वालिद साहब के भी दोस्त थे। मैं जाता था तो बच्चों की तरह मेरे साथ प्यार करते, जैसे मैं उनका बच्चा हूँ, और बिल्कुल अपने पास बैठाते और मुख्तलिफ बातें बताते, ऐसे काम करना, ऐसे करना, इस तरह की हदायत किया करते थे। तो एक ये वाकया उनका मेरे जेहन में है, और एक मैं इस मौलवी अदालत साहब मौलवी साहब के खिताब के हवाले से मैं भी थोड़ा सा बीच में शेयर कर दूं कि मैं 87 में आया हूँ, रब्बा में मुकीम हुआ वहाँ के। तो उसके बाद वही दौर था, खुतबा जुमा आपकी तरफ से ही होता था। तो उसका ऐसा आज तक मेरे दिल पर असर है कि बहुत ही खूबसूरत, बड़े धीमे से अंदाज में और बड़े प्यारे तरीके से वो समझाते थे हर चीज़। और हमेशा ऐसे होता था जैसे उनके मुंह से बातें निकल रही हैं और हमारे दिल में दाखिल होती जा रही हैं। एक नुमाया उनकी जो बातों में, एक उनके अंदाज में समझाने का जो खूबसूरत पहलू था ना, वो हमेशा से मेरे वो दिलो दिमाग पर वो उसका असर है। बिल्कुल इसी तरह है। वो बंदे को उनकी तकरीर ऐसी होती थी कि बंदे के दिल में जो है ना घुस जाने वाली तकरीर हुआ बिल्कुल। करती थी। मैं भी वहां जाके जुमे पढ़ता था रवा में हजरत साहब के बाद। तो वो बिल्कुल आपकी बात और बिल्कुल मुझे ठीक याद है। है कि उस दौर में आप बाकायदा वो अमामा और पगड़ी पहन के आते होते थे जुमे के हाँ लिए। हाँ, हाँ। पगड़ी और ये सारी
फिर इनकी देखे ना, मेरी अल्लाह पाक ने वो ख्वाहिशें इस अंदाज में भी पूरी की कि मौलवी साहब भी और जो फिर बशीर अहमद कालू साहब हैं, हाफिज मुजफ्फर साहब हैं, जितने सिलसिले के बुजुर्ग हैं, ये सारे के सारे अल्लाह के फजल से मेरे घर आए हुए हैं। साहबजाद खान साहब भी मेरे घर में आए हुए हैं। ये अल्लाह ताला का खास फजल है। माशाल्लाह। तो वो अल्लाह पाक ने जो मेरी बचपन में छोटी सी उम्र में मैंने दुआ की थी, अल्लाह ताला ने इस अंदाज में वो पूरी भी की। तो मैं अब मौलवी साहब की चूंकि बातें हो रही हैं तो जी जी उन्हीं की तरफ ही रहता हूँ। जी। तो फिर जब जाते दफ्तर में जाते बड़े प्यार से बिठाया करते और बड़ी मोहब्बत किया करते। तो मैं वो वाकया अभी आगे थोड़ा सा उसको आगे चलाना चाहता हूँ कि जब मेरे बच्चे को देख के वो चले गए 3-4 दिन बाद, जब मैं रब्बा गया तो उनको मिलने के लिए उनके दफ्तर हाजिर हुआ। तो मेरे साथ एक और दोस्त भी थे, गालबन अब्दुल अजीज साहब हैं, वो आजकल अमेरिका में ही हैं, सुबह से उनका तल्लक है, वो है। तो मौलवी साहब मुझे कहते वापस चले वापस चले जाए। मैं हैरान हो गया कि मौलवी साहब ऐसे क्यों कह रहे हैं कि वापस चले जाए। मैंने कहा मौलवी साहब क्या बात है, आज मैं अच्छा नहीं लग रहा। नहीं नहीं, आप खाली हाथ क्यों आए। तो मैंने फौरन फिर उसी वक्त बर्फी के 2 किलो मंगवाए और मौलवी साहब ने अपने टेबल पर रखी और रख के सारे अपने दफ्तर के लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा अल्लाह ने इसको बेटा दिया है और ये सब मुंह मीठा करें। तो मेरे ज़हन में ये बात नहीं थी, मैं तो ये लेके आया था कि मौलवी साहब को देनी है घर के लिए। हाँ। चुनाचे मैंने फिर दोबारा घर के लिए फिर अलग मंगवाई। ये नहीं, इस तरह का उनका अंदाज था। आपने एक और बड़ा जबरदस्ती दफ्तर के कारकुनों के लिए उन्होंने स्पेशल आपको कहा। एक दफ्तर का ही वाकया बयान करता हूँ जी कि मेरी हमशीरा जो आजकल जर्मनी होती है, रजिया बेगम उसका नाम है, तो जी। उसके कोई निकाह हुआ था और निकाह फार्म पर कोई नाम की और शिनाख्ती कार्ड में नाम की कोई गलती थी इस तरह। अच्छा। तो उसको एक करना था, शिनाख्ती कार्ड पर भी और निकाह फार्म पर भी। तो मैं वहां गया तो शेख नईम साहब उस वक्त चाय रिश्ता नाता होते थे, बड़ा प्यारा आदमी, प्यारे जी जी आदमी थे, वो जी मेरे जी। दोस्त थे। तो मेरी उनके साथ कुछ थोड़ी सी इस बारे में तलखी वलखी भी। उन्होंने मुझे हदायत दी कि ऐसे ऐसे करके अखबार में इश्तिहार दोगे, ये करोगे, वो करोगे। वो अखबार में इश्तिहार देने के लिए पीर के पास से आके दस्तखत करवा के लेके जानी होती थी दरखास्त, इस तरह का कोई मामला था। तो मैं साहबजादा मिर्जा खुर्शीद अहमद साहब, अल्लाह ताला उन्हें ज्वारे रहमत में अला मकाम अता फरमाए, बहुत ही प्यारे, बहुत ही दरवेश सिफ्त इंसान थे हजरत मिर्जा खुर्शीद अहमद साहब। वो उस वक्त उन दिनों में नाजर कैम मकाम नाजर अबूरामा थे। मैं वो दरखास्त उनके पास ले गया, उन्होंने उस पर सिफारिश कर दी। मुझे सरगोदा वापस न जाना पड़ा। चुनाचे अल फजल को अखबार में छप गई। तो मैंने शेख नईम को कहा अखबार में तो कल छप के आ जाएगी, आप पूरा केस तैयार रखें। मैंने आज भी दफ्तर से छुट्टी की है तो मेरा कल का दिन जाया ना हो। ठीक है। तो वो उन्होंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। जब वहां तो शेख साहब कहते हैं कि मौलवी साहब तो नादर साहब वाला के साथ एक मीटिंग है, वो वहां चले गए हैं, पता नहीं कितनी लंबी मीटिंग बनती है। तो वो मेरी तरफ से केस तैयार है। मेरी इस मौका पर उनसे थोड़ी सी तलखी हुई। मैंने कहा मैंने आपको कहा भी था मगर आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैं उधर दफ्तर में जाना है, ये वगैरह वगैरह इस तरह की बात हुई। तो मैं फिर न चला गया नाजर आला के दफ्तर में, नाजर साहब आला के दफ्तर में। मैंने चिट लिखी कि मैं कल से इधर फिर रहा हूँ और मेरे ये प्रॉब्लम है और आप मीटिंग में आ गए हैं, बराए मेहरबानी मुझे बताएं मैं क्या करूं। वो चिट ऐसे हुआ कि वो चिट बड़े नाजर साहब के पास, साहब भी मुझे जानते थे। तो साहबजादा मिर्जा मंसूर अहमद साहब ने मौलवी साहब को वो चिट दी और कहा कि जाएं ये बड़े साहब का काम करके। मौलवी साहब हंसते बाहर आ गए और कहने लगे मेरे कान कछवा दिए ऊपर से, गुजरा दिया।
मुझे इस तरह कर कहते थे ना, वो भी गुजरात के थे, मैं भी इसी इलाके का। बहरहाल मुझे मेरे साथ वो आए दफ्तर में आए। आगे मैं डरा हुआ था कि शेख नईम ने भी मेरी शिकायत करनी है, बड़ा अच्छा। डरा हुआ था। ठीक जब है। जब मैं वहां पहुंचा, दफ्तर में आया, आके बैठे, तो शेख नईम साहब पूरा केस लेके आके मौलवी साहब के आगे रखा और दो गवाह भी लेके आ गए साथ। हम्म, मौलवी साहब ने उस पर दस्तखत किए और कहने लगे, शेख साहब कहने लगे, मैंने की मेरी एक शिकायत भी है, वो मैंने आपसे बयान करनी। हाँ हाँ, बयान कर। ये जनाब दो गवाह हैं, इनके रूबरू इन्होंने ऐसे ऐसे कहा है। अच्छा। मौलवी साहब गुहान को कहते हैं कि आप तो चले जाए, आपकी जरूरत पड़ी तो फिर बुला लेंगे, अच्छा। अगर ये मुकरेगा तो फिर बुला लें। हम्म, तो फिर मेरी तरफ देख के ना कहने लगे, और गुजरातिया, तू मेरे अमले में लड़ाई करना है, इस तरह के अल्फाज बोले। तेन नहीं पता मैं भी गुजराती है, ऐ नहीं दे है गल। हूं ये मैं दस, पर तू अपने अल्फाज वापस लेने में, या पंजाबी पंजाबी में बात हो रही, या फिर मैंने गुआओं को बुलाना पड़ेगा। मैं कहा जी मैं, यानी हिकमत से वो मुझे ये भी बता गया कि अल्फाज वापस लेने की बेहतरी है। हाँ, तो मैंने कहा मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ और मैं शेख साहब से माफी चाहता हूँ। तो चुनाचे हम दोनों को बगल गीत कराया, माफी कराई, और मेरा जो वो काम था करके, और साथ ही आया कि इनको लेट हो गया, इनको फौरी तौर पर जाके सरगोदा छोड़ा। ये थी उनकी शख्सियत। इस तरह के वो बुजुर्ग थे, और इस तरह वो प्यार करते थे हमसे। बेशक। फिर आगे मैं आपको उनके बारे में एक और वाकया बयान करना चाहता हूँ कि एक दफा मैं लाहौर आया हुआ था, तो हमारे दोस्त थे चौधरी मनीर मसूद साहब, वो नाजम अंसारुल्लाह जिला सरगोदा थे। मैं भी उस वक्त नाजम अंसारुल्लाह ना, वो नाजम जिला लाहौर थे अंसारुल्लाह के, तो मैं हाँ। उस वक्त नाजम अंसारुल्लाह जिला सरगोदा था। तो वो उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था, वो बीमार थे, तो मैं लाहौर गया हुआ था। मैंने उन्हें फोन किया, मैं आपके घर आ रहा हूँ आपकी बीमार पुरसी के लिए, मैं आ जाऊँ? तो उन्होंने कहा आ जाए। तो मौलवी साहब भी वहां गए हुए थे। मौलवी साहब के वो हम जुल्फ बनते हैं, अच्छा। अच्छा। चौधरी मुनीर मसूद साहब। तो मौलवी साहब भी वहां गए हुए थे, और ये कहने लगे, सफदर बड़ैच को पता लगा है कि मैं यहाँ यहाँ आया हुआ हूँ, तो इसलिए आ रहा। तो चौधरी मुनीर मसूद साहब ने कहा, नहीं, वो हमारा भी दोस्त है, वो मेरे लिए आ रहा है, आपके लिए नहीं आ रहा। ये आपस में हम जुल्फ थे, मजाक मजूक भी होगा। बहरहाल जब हम पहुंचे, तो मेरे साथ मेरा एक नहायत ही प्यारा अजीज दोस्त, बल्कि छोटे भाइयों की तरह है, जैद शफीक गोंदल, 99 शिमाली की, आजकल लंदन में है, वो भी मेरे साथ थे। अच्छा। तो जब हम वहां पहुंचे, तो मौलवी साहब बाहर ही खड़े थे हमारे इस्तकबाल के लिए, हमें रिसीव करने के लिए, क्योंकि जी। वो तो उठ नहीं सकते थे। मौलवी साहब को हम मिले, आके फिर हम अंदर खैर दाखिल हुए। तो मुनीर साहब से बीमार कुर्सी की, तो मुनीर साहब कहते हैं, आप मुझे ये बताएं, क्या मेरे लिए आए या मौलवी साहब के लिए? बड़ा अजीब सवाल। मुझे अंदर की कहानी का तो इल्म नहीं था, अंदर क्या बात है। जी। मैंने कहा, मैं तो आपके लिए आज आया हूँ, आज मौलवी साहब के लिए तो नहीं ना आया। ये तो अलग एक मौका मिल गया इनसे भी मिलने का, हम तो रब्बा में मिलते रहते हैं। तो जी। वो कहते हैं, ये कह रहे थे वो मेरे लिए आ रहा है। मसूद साहब ऐसे मुझे कह रहे हैं। तो बहरहाल वहाँ मौका मिला, फिर हम मुझे उनके साथ वापस रबवा, उनके साथ आने का मौका मिल गया। इस तरह करके हम हमारा उनके साथ इसी तरह प्यार और मोहब्बत का तल्लक था। फिर एक और वाकया मैं यहाँ कोट कर देता हूँ। एक और दफा जी। कि मैंने एक ख्वाब देखी, और वो उस दिन कोई मरकज में कोई ऐसा वाकया हुआ था कि वफात थी या कोई, इस जनाजे में हम आ रहे थे, मैं और चौधरी नसरुल्लाह खां बनी साहब और मलक मुख्तार साहब। मैंने उनको रास्ते में बताया कि मैंने आज रात को ये ख्वाब देखी।
اور وہ جماعت کے متعلق خواب تھی اسی طرح کی. میں اس کو یہاں بیان نہیں کروں گا. میں نے وہ حضور انور کی خدمت میں بھی وہ لکھ کے بھیجی تھی. تو جب میں نے وہ مجھے کہنے لگے چوہدری نصر اللہ علی صاحب کی اور ملک گلزار صاحب کی کہ یہ خواب آپ کو تاریخ میں لا کے تو دینی چاہیے یا حضرت صاحب کو بھیجنی چاہیے, لکھ کے بھیجنی چاہیے. تو مجھے شرم محسوس ہوتا تھا کہ کیسے لکھوں کہ میں کوئی اس طرح کا خواب آور بزرگ تو نہیں ہوں نا. میں تو ایک کمزور اور گناہگار اور حقیر انسان ہوں. وہ میرے ساتھ تکرار کر رہے تھے لیکن میں ان کی بات پر غور نہیں کر رہا تھا. خیر دفتروں میں ملتے جنازے کے بعد یا جو بھی کوئی پروگرام تھا, مجھے یاد نہیں وہ کیا پروگرام تھا جس میں ہم گئے تھے, تو مولوی صاحب کے پاس ہم چلے گئے. انہوں نے مولوی صاحب کو وہ خواب بتا دی کہ انہوں نے اس طرح کی اس نے خواب دیکھی. ہم نے سے کہا ہے یہ طرح تیار نہیں ہو. مولوی صاحب نے کہا ادھر بیٹھ گیا اور انہوں نے کاغذ میرے آگے رکھی. انہوں نے کہا آرام کے ساتھ لکھی. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے لکھی. سنانے میں تو مختصر ہے لیکن جب میں نے لکھی اور انہوں نے اسی وقت ایک کاپی اپنے پاس رکھی, ایک حضور کو فیکس کر دی اور ایک کاپی مجھے دے دی, اس کو سنبھال کے رکھ لو. اور وہ خواب وہ میری چٹھی جو ہے حضور کی خدمت جو لکھی میری فائل میں رفا میں میرے چھوٹا بھائی طاہر احمد وڈیچ ہے اس کے گھر میں میری فائل میں لگی ہوئی ہے. اور اس پر جو حضور کا جواب آیا وہ اس کا تھوڑا سا اشارہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. حضور نے یہ لکھا کہ آپ کی رویا کسی آنے والے اچانک انقلاب کی پیشخبری ہے, اللہ جلد جماعت کے حق میں پوری فرمائے. تو وہ مولوی صاحب کے ساتھ اس طرح کی ہماری یادیں ہیں اور ہم بھی ان کے لواحقین میں شامل ہیں. خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کے پیارے دوست اور ہمارے بھی وہ دوست تھے اور بزرگ بھی تھے, والدین کی جگہ پر تھے, انہیں کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلافہ کے قدموں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور انہوں نے بہت لمبا عرصہ خدمت کی ہے بطور ناظر اصلاح اور ارشاد. پھر جب ناظر رشتہ ناتا تھے تو اس وقت بھی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے. میں جب بھی جاتا تھا اس دفتر میں جاتا تھا مجھے ضرور اندر بلا کے چائے بھی پلاتے, بسکٹ بھی کھلاتے, بہت پیار کیا کرتے تھے. میں ان کے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ بیمار ہے. میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے لیے بڑی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور میں ان کے لیے بڑی دعائیں کرتا رہا ہوں. چند دن پہلے ان کی بیماری سے پہلے ان کے داماد کو میں نے فون کیا. وہ ہمارے نائب صدر بھی ہیں یہاں امریکہ کے, ڈاکٹر منصور. بلکہ میں نے کہا کہ یار میں آپ کو فون کر رہا ہوں, آپ میرا فون نہیں اٹھاتے. میں نے ان بزرگوں کی خبر لینی تھی اور کوئی کام نہیں آپ سے. تو بڑی لمبی ان سے پھر پیار اور محبت کا تعارف ہو گیا. تو ان کے ساتھ اس طرح کا ہمارا تعلق تھا. سرگودا کے ہاں ایک اور واقعہ ان کا اور واقعہ یاد یہ آیا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے جمعہ پڑھانا تھا سرگودا میں. مسجد میں داخل ہوتے ہی جب میں نے انہیں ملا, جب انہوں نے آنا ہوتا تھا میں اکثر آگے آگے ہی ہوتا تھا, تو ملا تو مجھے کہنے لگے آج میں نے جو خطبہ دینا ہے وہ ایک تاریخی خطبہ ہے اور میں اس خطبے کو ریکارڈ کرنے کا فوری انتظام کروں اور 1 گھنٹے کا خطبہ. عام طور پر مختصر خطبہ دیا کرتے تھے. میں اسپیشل آج مجھے ایک اسپیشل خطبہ دینا ہے. چنانچہ ہم نے انتظام کیا. اس خطبہ میں انہوں نے جو اس وقت صدر پاکستان تھے فاروق احمد لغاری صاحب, ان کے متعلق انہوں نے سیرت النبی پر کوئی خطاب کیا تھا
تو मौलवी साहब ने उसकी तारीफ में उन्होंने कहा कि इतना जबरदस्त खुतबा जब से पाकिस्तान बना है किसी इस मुल्क के किसी सरबराह ने इतना जबरदस्त खुतबा नहीं दिया सीरत। तो ठीक। उस पर वो बड़ा 1 घंटे का खुतबा था, हो सकता है मरकज में महफूज हो, लेकिन वो बाद में मैं सुन नहीं सका, इतना जबरदस्त वो खुतबा था। एक ये खुतबा जो मैंने ये फरूक लगारी साहब के वो मैंने उनका, और एक खुतबा उनका जो था वो आवाज़ आपकी। बीच में आ गया था किसी का जी, फोन। जी। एक खुतबा उनका मैंने जो सुना वो जब बंगाली साहब के दौर में उन्होंने कजना बैरक्स में इरशाद फरमाया। खुतबा तो उनके एक से एक बढ़कर है, लेकिन जी, जी। ये अगर मैं समझता खुतबात हूँ का कि तो मैंने अगर आपको खुतबे बताया कि जमात ये बड़े जबरदस्त खुतबात थे। तो अब मजीद असल तरफ से आज हो सकता है खुतबे में भी आए, अल्लाह ताला हमें वो खुतबा सुनने की तौफीक अता फरमाए। कल खुतबा होगा तो फिर ठीक है। इंशाल्लाह उसमें भी आएगा। तो मैं इन्हीं चंद बातों पर इत्फाक करते हुए मैं अपनी ये इंटरव्यू खत्म करता हूँ। जी, जी, अल्लाह ताला ज़रूर। हमें इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए खिलाफत अहमदिया के साथ प्यार, वफा और मोहब्बत का तल्लक हमेशा हमेश के लिए कायम रखने की तौफीक दे, और ये तल्लक हमारी नस्लों में हमेशा जो है बढ़ता रहे, और खिलाफत की छतरी में जमात अहमदिया को तरक्यात से नवाजे। आमीन। हाँ, यहाँ पर इख्तिताम पर चंद एक बातें मैं भी मौलवी साहब के हवाले से शेयर करना चाहूँगा बिल्कुल बिल्कुल। हमारे नाज़रीन के लिए कि मुझे भी तकरीबन सदर अंजमन में कोई 9 साल करीबन मुझे खिदमत की तौफीक मिली। तो उस दौरान में मुलाकात होती रहती थी अक्सर दफातर में, जब वो भी वहीं पे थे और मैं भी उधर ही कभी आते जाते मुलाकात हो जाती थी। और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से चूँकि एक सहूलत थी मेरे पास, तो कभी-कभी मुझे ये सआदत भी नसीब हुई कि मैं उनको उनके घर तक भी छोड़ के आया। तो ये भी एक उनका बड़ा ही प्यारा अंदाज़ होता था, बड़ा मोहब्बत से उन्होंने अगर कोई बात करनी है तो हमेशा, यानी कभी मैंने उनको किसी रंग में कि कहीं गुस्से में एक इंसान कई दफ़ा दूसरों को देखता है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं तकरीबन 9 साल का अरसा मैंने वहाँ पे इस दौरान उनको देखा है। पहले जब वो नाज़िर इस्लाम शाह थे उस वक़्त भी उनसे मुलाकात हुई, उस वक़्त तो बहुत थोड़ा वक़्त में, क्योंकि मैं रब्वा में नहीं था उस वक़्त। लेकिन जो उन्होंने नाज़िर इश्तनाता के तौर पे और नाज़िर खिदमत दरवेशा में जो उन्होंने वक़्त गुज़ारा है, वो नाज़िर खिदमत दरवेशा के दौरान भी मैं वॉलंटियर के तौर पे ना अपने दफ़्तर से जब काम ख़त्म होना, तो मैंने वहाँ चले जाना। जो जलसे की जो तैयारी के हवाले से कुछ होते थे प्रोग्राम, तो वो जलसे की जलसा कादियान के लिए जो तैयारी होती थी, उसमें वॉलंटियर के तौर पे मैं जाता था। तो बड़ा उनका मुशफ़िक़ाना अंदाज़ होता था तमाम वर्कर्स के लिए और बड़ी मोहब्बत का इज़हार करते थे। तो इसी तरह से खिदमत दरवेशां के बाद नाज़िर इश्तनाता हुए, तो वहाँ भी उनके साथ जाकर मुलाकात का मौका मिला। और यही जैसे आप बताते हैं, हमेशा वो उन्होंने चाय वग़ैरह का साथ एहतमाम करना और बड़ी मोहब्बत से मिलना। तो उनकी वफ़ात पर मैंने कुछ अशार भी उनकी याद में लिखे हैं, वो भी मैं यहाँ पर नाज़रीन की खिदमत में पेश कर देता हूँ। कमर साहब एक एक मिनट, मुझे बड़ा जबरदस्त और एक वाकया याद आ गया है। तो जी, ये जी। जो अशार है ये आखिर पर अरशाद जी, जी। फरमाया, ये सुन लें। इतना प्यार करने वाला वजूद। जी, देखें, बेशक, मैं बिल्कुल। आपको हर बड़ा बंदा इसकी लतीफे गवाही अंदाज, देगा, जो भी उनका ज़िक्र करेगा, उनकी मोहब्बत, शफ़क़त। लतीफे के अंदाज में भी बयान करता हूँ जी, जी। कि मैं 2004 में पहली दफा कादियान जलसे पर गया था। जी, जी। तो जब हजूर आए तो 5 में मेरा प्रोग्राम, मैंने भी दरखास्त दी। तो चूंकि वहाँ 150 का कोटा था सरगोदे के लिए, तो मैं भी जो कमेटी थी ना जो सिलेक्शन करती है, 150 सेलेक्ट करती है, उस कमेटी का एक मेंबर था।
تو کمیٹی میں یہ بات آئی کہ جو پہلے جا چکے ہیں نا 2004 میں گئے وہ نہیں جائیں گے. اچھا. اب میں اس کمیٹی کا ممبر تھا, میں کیا کرتا, میں نے کہا ٹھیک ہے میاں, اور یہ بھی پتا ہے اور اندر میں دل میں ایک تڑپ تھی. ہاں. بہرحال کمیٹی نے مجھے اپروو نہ کیا. ہم، میں اس کمیٹی میں خود بھی تھا. میں مرزا صاحب کے پاس چلا گیا اور میں نے مرزا صاحب کو کہا کہ جناب میں تو وہاں کمیٹی میں سلیکٹ نہیں ہوا, تو یہ میرا مسئلہ ہے. مرزا صاحب نے کہا میں آپ کی سفارش کر دیتا ہوں, آپ درخواست لکھیں. میں درخواست لی اور لکھ کے میں وہاں چلا گیا. تو یہ اس وقت تھے. تو میری درخواست پر لکھا کہ آپ کی درخواست ود شکریہ قبول کی جاتی ہے. اچھا. وہ میں گیا تو پاسپورٹ جا کے میں اس کو, میرا خیال ہے اس وقت محفوظ صاحب تھے یا کوئی ان کے جو بھی ساتھ کام کرتے تھے, انہوں نے نعیم کہا شیخ جناب نعیم صاحب تھے وہاں پہ. ہاں شیخ نعیم صاحب بھی ادھر ہی ہوتے تھے. انہوں نے کہا جناب یہ درخواست جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ود شکریہ کی جاتی ہے, یہ تمہاری بیگم سمایت ہے. میری بیگم کا نام شکریہ ہے. شکریہ ود اچھا. شکریہ کی جاتی ہے. میں کہا یار پوچھ لو, میں پھر منگوا لیں. میں پھر پاسپورٹ اتنے منگوایا اور کیا میں ود شکریہ قبول کی ہے. اور پھر یہ میرا سلسلہ تقریباً 3-4 سال جاری رہا. میں درخواست جا کے وہاں دیتا تو مولوی صاحب یہی جملہ اوپر لکھا تھا. کیا اچھا. بات ہے, میں ان کا کیا کیا باتیں ان کی بتاؤں. وہ محبت ہے بس. وہ کوئی میں سمجھتا ہوں وہ پیار اور محبت کرنے والا وجود تھا, اور وہ ہر ایک چاہتا کے تھا کہ ساتھ. لوگوں کے کام سال, ہاں یعنی جی بالکل. رکاوٹ ڈالنے. نہیں. میں کسی کی بات نہیں کرتا, دیکھتا ہوں کہ بعض رکاوٹ ڈالنے والے, ہم، لیکن وہ ایک ایسا وجود تھا, وہ اپنے پاس سے پیار اور محبت کا ساتھ حصہ بھی ڈالتا تھا. اور یہ سلسلہ میں اللہ کے فضل سے تقریباً 7 دفعہ قادیان جانے کا موقع ملا, اور وہ تقریباً ان کے ہی دور ہیں. جی ہاں. تو اب تو مرزا عبد الصمد صاحب ہیں وہ ذرا ٹائٹ ہے, تو مولوی صاحب تو پیار اور محبت کا بالکل بالکل ایسے ہی کرنے تھے. والا وجود تھا. کیا ان کے بارے میں ہم بتائیں, اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ چلیے جی, یہاں پر آخر پر مقام میں عطا فرمائے. بہت پیار کرتے تھے. آخر پر چلیں اب مولوی آپ صاحب اپنی کے سنائیں. حوالے سے جو چند اشعار مجھے لکھنے کی توفیق ملی وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ناظرین, بیان شیریں تبسم سے پر صدا چہرہ, ماشاء بیان شیریں تبسم سے پر صدا چہرہ, عجب خلوص لیے روح میں بسا چہرہ, عجب خلوص لیے روح میں بسا چہرہ, جو بات کی ہے تو ایسی کہ دل تلک پہنچی, جو بات کی ہے تو ایسی کہ دل تلک پہنچی, جہان دل میں اتر آیا پارسا چہرہ, جہان دل میں اتر آیا پارسا چہرہ, تمام عمر بتائی ہے خدمت دین میں, تمام عمر بتائی ہے خدمت دین میں, تبھی تو جبہ و دستار میں سجا چہرہ, تبھی تو جبہ و دستار میں سجا چہرہ, جھکا رہا وہ خلافت کے سامنے ہر دم, جھکا رہا وہ خلافت کے سامنے ہر دم, امام وقت کے آگے نہ پھر اٹھا چہرہ, امام وقت کے آگے نہ پھر اٹھا چہرہ, رقم وہ کر چکا تاریخ جب وفاؤں کی, رقم وہ کر چکا تاریخ جب وفاؤں کی, تو ہم سے دور چلا ہے وہ با وفا چہرہ, تو ہم سے دور چلا ہے وہ با وفا چہرہ, وہ دل کو موہنے والا خلوص کا سلطان, وہ دل کو موہنے والا خلوص کا سلطان, طمانینت سے تھا بھرپور ایک جدا چہرہ, طمانینت سے تھا بھرپور ایک جدا چہرہ, وہ دل کی آنکھوں سے
जो दिल की आंखों से झांका है आज माजी में, जो दिल की आंख से झांका है आज माजी में, उभर के आ गया आमिर वो चांद सा चेहरा, उभर के आ गया आमिर वो चांद सा चेहरा, बयान शीरी तबस्सुम से पुरसदा चेहरा, अजब खुलूस लिए रूह में बसा चेहरा। मेरे उनका चेहरा इस तरह से ही बिल्कुल इसी रंग में मेरे दिल के अंदर बसा है। कमल अल्लाह साहब, ताला। आपने क्या बात, बड़ा जबरदस्त आपने ये कलाम उनके बारे में बताया है। एक और मुझे याद आ गया है जी जी कि 14 अक्टूबर 1992 को जब मेरे पर कातिलाना हमला हुआ, जी 15 अक्टूबर को मौलवी साहब, मुकर्रम साहबजादा मिर्जा गुलाम अहमद साहब और मलिक मसूद साहब, जी जी मसूद अहमद खालिद साहब, नाजर अबू रहमान जी रुस्तम, जी बिल्कुल। ये तीनों तशरीफ लाए और बड़ा प्यार और मोहब्बत का इजहार किया। हम्म, तो जो एक और बात है कि जी जी मौलवी साहब को मैं दुआ के लिए हमेशा लिखता था, अच्छा। यानी मलेशिया आने से पहले तक मैं उनको लिखता रहा। हम्म, तो मौलवी साहब के वो प्यार भरे खतूत वो मेरे पास महफूज हैं, वो भी सारे के सारे वो। मैंने देखा है कि बाज ऐसे भी बुजुर्ग हैं जिनको खत लिखते हैं वो जवाब नहीं देते। जी तो हालांकि ये मैं समझता हूँ कि ये कोई बुजुर्गी में दाखिल नहीं, बात मेरी मेरी नजर में इखलाक का तकाजा ये है कि अगर कोई खत लिखता है तो उसका जवाब उसे जरूर दिया जाए। मौलवी साहब हमेशा ये कहा करते थे। कहना वो मैं एडा बड़ा कोई दुआगो नहीं हाँ, पर मैं कदे नहीं कीता कि कोई मैंने खत लिखे थे मैं उन्हें फौरी जवाब ना दिया। और बहुत दुआगो बुजुर्ग थे, मैं उनकी दुआओं जी का भी बिल्कुल कायल हूँ। बिल्कुल। अल्लाह ताला उनके उनकी दुआओं के तुफैल अल्लाह ताला ने हमें तो बहुत कुछ दिया। खुदा के जी खलीफा की दुआएं पहले, और फिर इस तरह के जो बुजुर्गाने सिलसिला हैं उनकी दुआएं हमारे लिए एक खजाना है जो बेशक हमें बेशक। आइंदा भी मिलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला, सारी जिंदगी सारी उम्र। तो बहुत ही प्यारे बुजुर्ग हस्ती से आज हमसे जुदा, जो आज हम में नहीं है। तो जी एक बहुत बड़ा आलम और बहुत बड़ा बुजुर्ग आज इस दुनिया से चला गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो यहीं पे हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। यादें तो ऐसी हैं कि हम बैठे रहें तो चलती चली जाएंगी, लेकिन हमारे अब 1 घंटा हो गया प्रोग्राम देखते हैं, को। उनसे बात तो यादें तो आ रही है ना। हो सकता जी है जी और भी चंद दिन बाद आ जाए और जी मेरे जी जेहन में आए कि वो इंशाल्लाह फलां हम इस हवाले है। से फिर एक प्रोग्राम और भी कर लेंगे, और इंशाल्लाह यादें हम सारी इकट्ठी करेंगे। तो यहाँ आपसे इजाज़त लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।